ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ہم سب کتنے بے وقوف ہیں، کسی سے امید باندھ لیتے ہیں، اس کی مکھن بازی پر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور دل ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی کا کچھ نہیں جاتا، اپنا نقصان ہوتا ہے، اور دیکھ لیا نا اس کا انجام، سارا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے۔ انوشا نے کرا کر آنکھیں کھولی، اس کی سمت دیکھا، پھر کروٹ بدل لی۔ مت سنو میری بات، میں صحیح کہتی تھی نا، لگتا تھا نا وہ اچھا، خوب بن ٹھن کر ساتھ گھوما کرتی تھی، دیکھ لیا انجام، اس نے کسی اور کو پھنسا لیا۔ یہ لڑکے تفریح کرتے ہیں، جس لڑکی کے ساتھ یہ کبھی شادی نہیں کرتے۔ مت دو مجھے لیکچر، انوشا نے تلخی سے کہا۔ امی کو تو سمجھ میں ہی نہیں آتا، ہر لڑکے کو دیکھ کر پسند کر لیتی ہیں۔ روین نے کہا۔ تمہاری زبان بہت چل رہی ہے روین، جمیلہ کی دور سے آواز آئی۔ میرا ہر فیصلہ اٹل ہوتا ہے، امی نے اگر میرے ساتھ تمہارے والا سلوک کیا تو دیکھ لینا، میں گھر چھوڑ کر دادی اماں کے پاس چلی جاؤں گی، روین نے مزہم لہجے میں کہا۔ ہاں چلی جانا جلادوں کے پاس، جنہوں نے مجھ پر بے حد ظلم کیے، تم جب جاؤ گی تو خود ہی معلوم ہو جائے گا سب۔ وہ وہیں سے بولی۔ یہ کارڈ پکڑو، اس نے زور سے پھینکا۔ میرے ساتھ بدتمیزی مت کیا کرو، انوشا نے جھنجھلا کر کارڈ کے ٹکڑے کر دیے۔ ارے کیوں فکر کرتی ہو، اتنی پیاری سی تو ہو، مسئلہ تو میرا ہے، نہ آنکھیں بڑی نہ بال، تاڑ سکت، شکل بھی عجیب ہونک، ڈھیلی ڈھالی قمیض، کمر سے ایک سائڈ مٹھی میں دبایا تو پتلی سی کمر نمایاں ہو گئی۔ انوشا نے ناگواری سے منہ پھیر لیا۔ تم کس بات کا سوگ منا رہی ہو؟ اٹھو میرے ساتھ بازار چلو، مجھے درزی سے اپنا سوٹ لینا ہے جو کل شادی میں پہنوں گی، روین نے کہا۔ کس کی شادی؟ جلے لہجے میں انوشا نے پوچھا۔ فیصل ہاشمی کی۔ تیرے ماموں کا بیٹا لگتا ہے، جو جائے گی بارات میں، امی نے بھنا کر کہا۔ مطلوبہ لڑکے کی شادی کی خبر انہیں ملتی تو ان کا موڈ بگڑ جایا کرتا تھا۔ انکل جہاد ہاشمی کا تو ہے۔ اللہ، اتنا بڑا فنکشن ہوگا، بڑا مزہ آئے گا۔ آرام سے بیٹھو، بڑا مزہ آئے گا، جمیلہ تیوری پر بل ڈال کر رہ گئی۔ یہ ڈھیٹ ان کی ایک نہیں سنتی تھی، وہ اپنی دادی نصیرہ کی دیوانی تھی، پکا پروگرام بنا رکھا تھا، چھٹیوں میں ضرور جائے گی۔ پتہ نہیں کیوں انہیں ساس کے پاس جانا یا ان کا یہاں آنا سخت ناگوار گزرا تھا، حالانکہ سب سے زیادہ ان کا خیال رکھتی تھیں۔ سلمان حیدر کی وفات کے بعد اور دھیان رکھنے لگی تھیں۔ مکان ان کے نام کر دیا تھا، 2 دکانوں کا کرایہ ملتا تھا، بیٹیوں کے ساتھ آرام سے رہ رہی تھی، کوئی بھی ان کے معاملے میں دخل دینے کی ہمت نہیں کرتا تھا، کیونکہ کسی کا عمل دخل انہیں پسند نہیں تھا۔ عجیب طبیعت پائی تھی، ان پر دونوں لڑکیوں کا ادھر ادھر گھومنا پھرنا بہت پسند تھا۔ انوشا پوری انہی پر گئی تھی، اور روین کو یہ سب کچھ بہت ناگوار گزرتا۔ انوشا بہت خوبصورت تھی، اسے اپنے حسن کا بہت احساس تھا، ماں بھی ساتھ لیے پھرتی، ہر اس گھرانے سے تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش کرتی جن کے یہاں لڑکے ہوتے، اور انوشا کو بھی خوب تیار کر کے لے جاتی۔ تو یہ اتفاق 3 جگہ سے دھوکہ کھایا تھا انہوں نے۔ روین کو یہ سب کچھ بہت ناگوار گزرتا۔ بڑے تایا نے اپنے بیٹے کے لیے انوشے کا رشتہ مانگا تھا، جمیلہ بیگم نے صاف انکار کر دیا کہ میں کسی صورت ددیال میں نہیں دوں گی۔ جاہل اجڑ گوار، بینک میں معمولی ملازم ہے۔ امی، جنید بھائی بہت اچھے ہیں، کر دیں، کل کو بڑے افسر بھی بن جائیں گے۔ تم چپ رہا کرو، کسٹم آفیسر فیصل ہاشمی کا عنقریب رشتہ آنے والا ہے، پہلے روز روز ملاقاتیں ہوتی تھیں۔ فیصل مجھے لنچ پر لے کر جائیں گے، فیصل نے آئس کریم کا پروگرام بنایا ہے، اترا اترا کر انوشا کہتی۔ روین جل کر راکھ ہو جاتی۔ یا اللہ، کب سمجھ آئے گی، فیصل تو صورت سے فراڈیا لگتا ہے، صرف دل بہلا رہا ہے۔ وہی ہوا، شادی کا کارڈ موصول ہو گیا، جس کا سوگ منایا جا رہا تھا۔
अम्मी, मुझे कुछ अच्छे अच्छे कपड़े बनाने हैं, मैंने दादी के पास जाना है। कैसे अच्छे कपड़े? जमीला ने नागवारी से कहा। अनुषा के लिए भी तो बनाती हैं, उसके जैसे। ले लेना, वो कपड़े कम बनाया करती थी। तो कल फिर बाजार चली जाऊं मैं? चली जाना, उन्होंने दांत पीस कर कहा तो रोवैन खुशी से खिल उठी। दादी की बाहों में मुकीद वो बड़े सुकून से बैठी थी। तुम्हारी अम्मी को तौफीक नहीं होती आने की, दादी ने कहा। आपको तो मालूम है उनका, मैं रहूंगी आपके पास बहुत सारे दिन। मेरी चांद है तो, दादी ने दुलार से कहा। मैं आपके लिए चिकन लॉन का कुर्ता और शलवार दुपट्टा लाई हूं। शलवार दुपट्टा भी चिकन का? चचा हसन की बेटी सामिया ने पूछा। कुर्ता है चिकन का, बाकी मैचिंग है बेवकूफ। सामिया के साथ तो वैसे भी बड़ी दोस्ती थी, नोक झोंक भी हो जाती थी। सामिया, उज़ैब को खाना दे आओ, उसे तो काम के वक्त कोई होश नहीं रहता। जी अम्मी, उसने बड़े एहतमाम से खाना ट्रे में रखा। इतना खाना खाते हैं उज़ैब भाई? तुम्हें एतराज है क्या? तुम्हें क्या, मेरे भाई जितना भी खाएं? फिर वजाहत की। नाजुक मिजाज है, सब कुछ होना चाहिए, चाहे वो खाएं एक नवाला ही। बड़े अजीब हैं, उसने शाने उचकाकर देखा। दुबले पतले अजीब से, उसके जहन में वही सूरत थी। बहुत गुस्से वाले हैं और बहुत जीनियस भी। इतने हैंडसम, बमुश्किल हंसी रोके हैंडसम कहने पर, क्योंकि उसने तो जो खिताब दिया था जहन में ताज़ा था। सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, बहुत बड़े अफसर हो जाएंगे। अच्छा भाई, लड़कों से रोवैन को वैसे भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? सामिया ने बुरा मनाया। बड़ी खुशी की बात है, उसने दिल रखने को कहा। सामिया ट्रे उठाकर चली गई। मेरा कौन सा इसके साथ रिश्ता होना है जिसकी मैं खुशी मनाऊं? उसने सोचा और बची हुई खीर उठाकर खाने लगी। वो हंसते हंसते बेदम सी हो रही थी। सामिया की खीखी भी शामिल थी। हाय, कितने बड़े अमरूद! बराबर के घर में लगे अमरूद के दरख्त की कच्चे पके अमरूद वाली शाख उनके समेत झुकी हुई थी। हम लोग तोड़ा नहीं करते, उज़ैब भाई बहुत डांटते हैं। इस वक्त वो थोड़ा ही हैं, उसने गद्दारी पर उकसाया। वो जिस बात को मना कर दें मैं वो नहीं करती। कितनी सादतमंद हो, वो बेख्तियार हंस पड़ी, क्योंकि ये तो मनमानी करने में सरे फहरिस्त थी। बचपन में भी हम पर रोब जमाते रहे। नौशीन आपा भी उनके रोब में आ जाती थी। भाई में एक बड़ापन होता है। होता होगा, मुझे क्या मालूम, उसने लापरवाही से शाने उचकाए। तुम्हारा कोई भाई नहीं है ना, इसलिए, सामिया ने कहा। हाँ, हो सकता है भाई, तुम तो रहो सादतमंद, मगर मैं तो इस सिफ्त से मुबर्रा हूं, उसने शाने उचकाए। कैसे अमरूद है वो देखो, चीकू से लदा पेड़, लगता है घर वालों को खबर ही नहीं। इतने पक्के पक्के चीकू उन्हें नजर नहीं आ रहे। वो कमर पर हाथ टिकाए तायराना नजर से पेड़ों को देख रही थी। मगर तुम तोड़ोगी नहीं, सामिया ने कहा। क्यों भाई, ये देखो, उसने अचानक उचक कर अमरूद तोड़ा। एक तुम्हारा, अपने ध्यान में पीछे उछाला, दूसरा मेरा। कमीज के दामन से रगड़ कर काटा। हाय, कितना मजेदार है। रोवैन ने पलट कर देखा और सीटी गुम हो गई। सामिया तो नहीं थी, अलबत्ता अमरूद हाथ में दबाए कोई और बड़ी खुशमगी निगाहों से घोर रहा था, लंबा चौड़ा। या अल्लाह, ये कौन है? चोरी पर उकसा रही थी आप सामिया को, और किसी के घर से फल चुराना कहाँ की इंसानियत है? इंसानियत कहाँ बीच में आ गई? हाय अल्लाह, ये कौन है? रोवैन बोली। सामिया को भी अपने जैसा चोर बना रही थी। वो तो इत्तेफाक से मैं इस तरफ आ निकला। आपके किस्से बहुत मशहूर हैं, मनमानी के। खबरदार जो मेरी बहन को अपनी राह पर लगाया। यहां घूमने आती हो, घूमो फिरो और बस। हमारे यहां बहुत इज्जत है, समझी? वो धाड़ रहा था और वो गर्दन हिलाकर रह गई।
ख्वामखा रोब जमा रहा था ये। उसने मेरी बहन कहा था तो इसका मतलब है उज़ैब भाई हैं। सूखा हुआ मरा उज़ैब तो लगता ही नहीं था, इतना धार धार कर बोल रहा था। शर्मिंदगी से उसकी बुरी हालत हो गई। अमरूद भी वहीं क्यारियों में फेंक दिया, झूलती लट को कान के पीछे किया और वहीं छोटी सी क्यारी के पास बैठ गई। मुझे चोर कह दिया और खुद चोरी का अमरूद ले गए। ये उज़ैब भाई तो बहुत ही खूबसूरत हो गए हैं। एकदम ही अमरूद की पशेमानी भूलकर उज़ैब की खूबसूरती याद आई। अनुषा के साथ कितने खूबसूरत लगेंगे। अम्मी को पता नहीं क्यों एतराज़ है। इतना अच्छा रिश्ता तो घर में मौजूद है। फ़ोन करूंगी तो इत्तला ज़रूर दूंगी। इतनी प्यारी सी है मेरी बहन, यहाँ किसी को कोई एतराज़ भी नहीं होगा। रोवैन अपने रिहायशी कमरे में आ गई। उसी लम्हे सामिया हंसती मुस्कुराती चीकू और अमरूद छोटी सी टोकरी में उठाए आ गई। ये अभी अभी उज़ैब भाई ने मंगवा कर दिए हैं और कहा है रोवैन से कहो जी भर कर खाए, मगर पड़ोस के दरख्तों पर नियत ना लगाए। लो खाओ। टोकरी समेत वो बेड पर चढ़ बैठी। तुम किधर मर गई थी? वो शर्मसार हो रही थी भाई को देखकर। मैं तो चली गई थी डर के मारे। उज़ैब भाई कितने अजीब हो गए हैं, पहले तो कितने बुरे से थे, कांगड़ी कुब्बड़। जी रही। अपने इतने स्मार्ट और खूबसूरत भाई की तौहीन पर सामिया ने इंतहाई बुरा माना। तुम खुद कौन सी हसीन थी? अरे भाई हूं, उसने वसूख से कहा। बचपन की बात कर रही हूं, अब तो माशाल्लाह बहुत प्यारे हो गए हैं। इतने जबरदस्त तरीके से डांट दिया। वो खज्जल खज्जल सी चीकू उठाकर खाने लगी। मेरी सारी सहेलियों को बहुत पसंद है भाई। हैं? तुम अपनी सहेलियों को क्यों दिखाने ले गई? मैं क्यों दिखाने ले जाती? सब आती जाती रहती हैं। ये हर वक्त डांटते रहते हैं। नहीं, बहुत शरीर भी हैं। अच्छा, मगर लगता नहीं। आजकल CSS की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए पढ़ते रहते हैं। डबल MA है, लेक्चरार भी रह चुके हैं। फिर निकाल दिए गए हैं? उसने मासूमियत से अफसोस भरा अंदाज अपनाया। वो जो शुरू हो गई थी भाई की तारीफें करने पर। वाह, क्यों निकाल दिए जाते? वो तो अब्बू ने मना कर दिया कि इम्तहानात के दौरान सिर्फ पढ़ाई करो। अच्छा, फिर क्या हुआ? हटो परे, मजाक कर रही हूं भला। मैंने कब कहा? उसने अमरूद देखकर उठाया, दांतों से तोड़ तोड़ कर खाने लगी। उस चोरी के अमरूद का जायका कितना खट्टा मीठा था, ये तो फजूल सा था। बहरहाल बोली कुछ नहीं। दिल में मजबूत इरादा कर लिया कि जिस वक्त वो घर पर नहीं होगा वो लम्हा वारदात का होगा। बाहर की हवा भी खाते हैं, लाइब्रेरी के बाकायदा मेंबर हैं। उसने शो मारी। किस वक्त तशरीफ ले जाते हैं? उसने बड़े अदब से पूछा। 4 से 6 के दरमियान, वैसे कभी आगे पीछे भी हो जाते हैं। ये कैसी टाइमिंग है? जाने किस वक्त आ जाएं? अब तो चंद रोज रह गए हैं ना। अच्छा, उसने सर खुजाया। मैं आती हूं, अभी भाई को चाय देनी है। ये कहते हुए वो चली गई। शायद मेरा भी कोई भाई होता तो मैं भी उसकी तारीफों के पुल बांधती। अब क्या करूं? ले देकर एक नखरीली सी बहन है जिसे अपने हुस्न पर नाज ही बहुत है, पर है तो मेरी अजीज अज़जान। उज़ैब भाई से शादी हो जाए तो मज़े आ जाएंगे। मैं तो खूब फ्री हो जाऊंगी, रोब में भी नहीं आऊंगी। उसकी आदत भी अच्छी नहीं है, बदज़बान सी, जाने किसकी किस्मत फूटेगी। वो मज़े से लेटकर गाने सुनने लगी। आवाज़ आहिस्ता करो, उज़ैब भाई को ऊंची आवाज़ में गाने बिल्कुल पसंद नहीं। यकदम ही सामिया आ गई थी, तंबी करने कहने लगी। हमको तो हंगामे पसंद है। उसने आवाज़ कुछ और तेज कर दी। बराबर के कमरे में पढ़ रहे हैं। सामिया डरी डरी सी थी। हर वक्त पढ़ते ही रहते हैं, उन्हें कहो इतना मत पढ़ा करें, फेल हो जाएंगे। रोवैन, तुम उल्टी सीधी बातें मत किया करो। सामिया खाने को दौड़ी। लो भाई, बंद ही कर देती हूं, खुश। उज़ैब भाई को ऐसा पटाऊंगी कि हमारे दूल्हा भाई बन जाएंगे। अनुषा से कहूंगी अपनी तस्वीर जल्द भेज दे।
یا خود ہی آ جائے امی کے ساتھ. اتنا عرصہ ہو گیا ہے امی کو سسرال آئے ہوئے. میں تو بھائی اپنے سسرال والوں سے خوب دوستی رکھوں گی, چہیتی بہو بنوں گی. اس نے اپنا پروگرام ڈن کیا. سبھی ادھر ادھر مصروف تھے. اس نے چپکے سے نمبر ڈائل کیے. انوشا, روین بول رہی ہوں. میں نے تمہارے لیے عزیب بھائی کو پسند کر لیا ہے. ایمان سے بہت خوبصورت اور جینیس ہیں. مجھے تو بہت اچھے لگے. امی سے کہو اگر ہو سکے تو آ جائیں. تم بھی آ جانا ساتھ. اگر نہ آؤ تو پلیز اپنی سب سے خوبصورت تصویر TCS کے ذریعے بھیجوا دو. خدا حافظ. فون کھٹ سے بند کر دیا. اس نے انوشے کی تو سنی ہی نہیں اور اپنی کہے گئی. سامیہ کسی تقریب میں اسے بھی ساتھ لے کر جا رہی تھی. اتنا خوبصورت کنگن ہے. روین نے بے اختیار تعریف کی. میرے پاس بہت سے زیورات ہیں, بڑے منفرد قسم کے. وہ اترائی. میں بھی پہنوں گی. اس کی نیت خراب ہوئی. ادھر الماری میں رکھے ہیں, مگر وہاں عزیب بھائی پڑھ رہے ہیں. میں بہت چپکے سے جاؤں گی. وہ دبے پاؤں گئی. ڈبہ اٹھا کر لے آئی. یہ والا نہیں, اوپر جو رکھا ہے, نیلے رنگ کا چوکور. دیکھو شور مت کرنا. فکر ہی نہ کرو. وہ ڈبہ لے کر پھر اسی طرح سے گئی. پہلی مداخلت پر تیوری پر بل پڑ گئے تھے. اس نے ذرا سی گردن گھمائی. آسمانی سفید لیس لگا بڑا سا دوپٹہ ہی نظر آ رہا تھا. بالکل اس کی پشت پر ہی تو الماری تھی. جھنجھلا کر گردن موڑ لی. بڑی احتیاط سے لے کر جا رہی تھی. پتہ نہیں کیسے آنچل اڑا اور عزیب کے منہ پر جا پڑا. کیا مشکل ہے, وہ ناگواری سے بولا تو ڈبہ ہی ہاتھ سے چھوٹ گیا. بے شمار کانچ کی رنگ برنگی چوڑیاں فرش پر بکھر گئیں اور کئی تو ٹوٹ گئیں. ہائے, اس میں تو چوڑیاں تھیں. وہ وہی بیٹھ کر سمیٹنے لگی شرمندگی سے. اس کی ناگواری اور زور سے بولنے پر خجل بھی تھی. اجلت سے ٹوٹی چوڑیاں اٹھانے سے دونوں ہاتھوں کو زخمی کر بیٹھی. سامیہ, عزیب نے زور سے پکارا. جی بھائی. وہ ڈر کر فوراً آ گئی. کیا مشکل ہے, سمیٹو یہ سب اور جا کر ہاتھ دھلوا کر دوا لگاؤ. اچھا جی. وہ ٹوٹی چوڑیاں سمیٹنے لگی. پہلے جاؤ اس جاہل کے ہاتھ دیکھو, سارے خون سے بھر گئے ہیں. خون کے قطرے اس کے لباس پر بھی چند دھبے ڈال گئے. تکلیف کے باعث لب کاٹ رہی تھی. آنکھوں میں پانی جمع تھا. کس نے کہا تھا یہ ڈبہ اٹھانے کو؟ وہ ڈانٹنے لگی. خود ہی تو کہا تھا یہ ڈبہ لاؤ نیلا. چوکور بھی تو کہا تھا ساتھ. نیلے رنگ کے تو 2 ڈبے ہیں, میرے پاس یہ والا گول ہے. چوڑیاں ٹوٹ گئی. ساری میں دلوا دوں گی. سوری. وہ بدستور بال پوائنٹ دانتوں تلے دبائے موٹی سی کتاب کی ورق گردانی کرتا رہا. توبہ, کتنے زخمی ہو گئے تمہارے ہاتھ. خون بھی بند نہیں ہو رہا. پانی کی دھار تلے ہاتھ تھے. یوں کرو تم چلی جاؤ, میں تو زخمی ہو گئی ہوں. پاؤڈر چھڑکا بہت سارا. کپڑوں میں بھی دھبے چھڑائے. کرتا گیلا ہو گیا. میں نے اپنی سہیلیوں سے ملوانا ہے تمہیں. پھر صحیح. سامیہ اکیلی چلی گئی تو وہ دادی کے پاس آ بیٹھی. اپنی دادی کے پاس بیٹھنے کی فرصت مل گئی. انہوں نے شکوہ کیا. دادی اماں, میں تو آئی ہی آپ کے لیے ہوں. کبھی بھابھی سے بھی کہو ہمارے پاس آئیں. زائدہ چچی نے کہا. اسے تو ہم میں سے کوئی پسند ہی نہیں. یہ ہے میری پوتی, بس جو میری محبت میں بھاگی آتی ہے. فون پر بھی خیریت پوچھتی رہتی ہے. انہوں نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا. وہ بیٹھی بڑے اطمینان سے اخبار پڑھ رہی تھی. پڑھ لیا اخبار؟ اوپر سے عزیب آ گیا. جی پڑھ رہی تھی. یہ لیجئے. جا بجا ہاتھوں پر خراشیں تھیں. ہاتھ ٹھیک نہیں ہوئے؟ ہو گئے ہیں عزیب بھائی. ارے واہ, وہ تو خود سے بات کر رہے تھے. اب میں ان سے پکی دوستی کر لوں گی. سامیہ کا ایویں دم نکلتا ہے, غصے والے تو نہیں لگتے. وہ بیچ کے صفحات لے گیا. جب پڑھ لو تو مجھے دے دینا. اوپر جاتے ہوئے بولا. جی. مسکراہٹ دبائی اور من ہی من میں منصوبہ بنانے لگی, بلکہ منصوبے کے پل کی تعمیر شروع کر دی. کمرہ تھا یا لائبریری؟
अब क्या खाक दिल लगता। चंद लम्हों बाद ऊपर जा बैठी। इतनी किताबें? उसने हैरानी से कहा। इतनी किताबें पढ़नी पड़ती हैं CSS के लिए, इससे भी ज्यादा। मैं तो फिर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तो रट्टा फैक्शन हूं, खाक पढ़ पाऊंगी। तुम्हारा भी इरादा है? अभी तो फाइनल का देना है। फिर वो इंग्लिश में तो डब्बा गोल है, मुश्किल हो जाएगी। छोड़े, BA ही बहुत है। पता नहीं इंग्लिश का इम्तहान कितनी बार देना पड़े। अपनी कमजोरी अयां करने लगी। अनुषा बहुत होशियार है, फर्स्ट आती है हमेशा। MA इंग्लिश कर रही है। कितनी बड़ी है तुमसे? उसने बेतकल्लुफ होकर पूछा। शायद 4 साल। आपा नहीं लगाती? अब इतनी भी बड़ी नहीं है कि मैं अदब लिहाज करूं। मेरी बहन को देखा है आपने? इतनी प्यारी है, सब उसे ब्यूटी वुमेन कहते हैं। हाँ, देखा हुआ है। मैंने आपको नहीं देखा था शुरू में, जब आप। क्या शुरू में? उज़ैब ने उस आमसी लड़की को देखा, बातूनी सी लग रही थी। अच्छा, आप इतना पढ़ते हैं, सारा याद रहता है? किताबों के अंबार देखकर बोल गई। उसकी बात का जवाब ना दिया। याद रखना पड़ता है। वो मुस्कुराया। तभी तो सामिया कहती है, जीनियस भाई। उसने सोचा, उज़ैब भाई, आप मुझसे दोस्ती करेंगे? ठीक है, अच्छा अब जाओ। ये कमरा आपका है, यहां मैं पढ़ता हूं। तौबा, इतने कपड़े रखे हैं, धुले हुए एक साइड पर, कमीज, पतलूने, शलवार, कुर्ते रखे थे। ये ढेर रख जाती है सामिया, इस्त्री से जान जाती है। जो कपड़ा पहनना होता है तो कह देता हूं, इस्त्री कर देती है। मैं सारे कपड़े इस्त्री करके ले आऊं? जो जब दिल चाहेगा पहन लीजिएगा। वो अपनायत भरे लहजे में कह रही थी। कहाँ तकलीफ करोगी? मुझे तो बहुत खुशी होगी। वो कपड़ों का ढेर उठाकर ले गई। मेरा भाई करती रहती। उसकी लाइब्रेरी में इतने ढेर सारे कपड़े कुर्सी पर गडमड थे, ध्यान तो है नहीं। उस कमरे को लाइब्रेरी कह रही हो बेवकूफ? उसमें तो हम लोग बाहर से आने वाले मेहमानों को ठहराया करते हैं। अलग थलग सा है ना। उज़ैब भाई बहुत लापरवाह हैं, अपने कपड़े इधर उधर कर देते हैं। मैं धोकर वहीं बैठकर आती हूं कि जो दिल चाहे पहनने के लिए वही इस्त्री करवा लेते हैं। बेवकूफ हो तुम भी। वो पैंट की क्रीज बना रही थी। ओहो मोहतरमा, पैंट इस तरह इस्त्री नहीं की जाती, शलवार जैसे। जाहिल। तो मुझे क्या मालूम, मैं कोई धोबन हूं? मेरा भाई भी नहीं कोई जिसकी करती। अपनी तौहीन पर वो चढ़ दौड़ी उस पर। इस तरह करते हैं। सामिया ने पैंट को दुरुस्त किया। ठीक है, तुम ये कर दो। 2 क्रीजें बन गई थी। जी नहीं। वो इस्त्री का प्लग निकालकर भाग गई। कामचोर। कपड़े तो वाकई मुश्किल हैं इस्त्री करने। शलवार कुर्ता इस्त्री करके थक गई, फिर भी आहिस्ता आहिस्ता सारे कपड़े इस्त्री करके हैंगर्स में लटका दिए। रात खाने की मेज पर उसके इस्त्री किए शलवार कुर्ते में मलबूस वो दादी अम्मा से कह रहा था, दादी अम्मा, आज रोवैन ने मेरे कपड़े इस्त्री किए हैं। ये बहुत सुगड़ बच्ची है मेरी। वो एकदम से उज़ैब से फ्री हो गई। इसे भी लुत्फ आता था बातें करने में। हमारी बुलबुल ने तो रौनक कर दी घर में। असगर ने भतीजी के सर पर हाथ फेरा। शुक्रिया चचा जान। वो अपनी तारीफ पर खिल उठी। वो सामिया से बेतहाशा बातें कर रही थी, सारी तारीफें अनोशे की। मैं तो बस ऐसे ही रह गई। इतनी हंसमुख हैं। तुम चलना ना हमारे घर। यूं करो, मेरे साथ चलना। उज़ैब भाई भी इम्तहानों से फारिग हो जाएंगे। उनके इम्तहानों की डेट बढ़ गई है। हाय, इतनी मेहनत की, सारा भूल जाएंगे। वो इतने जीनियस हैं, भूलते नहीं। हाँ हैं तो। अब तो उसे भी एतराफ़ था। उज़ैब भाई, बड़े आराम से पुकार लिया करती थी। कहो। वो जाते जाते पलटा। आप सामिया को कहीं घुमाने फिराने लेकर नहीं जाते? उसने शिकायत लगाई है। तो वो बहन को देखने लगा। भाई, मैंने कुछ नहीं कहा। सामिया ने जल्दी से सफाई पेश की। मैंने खुद देखा है,
आप पढ़ते रहते हैं और चच्ची जान घर में मसरूफ। ये बेचारी सड़ती रहती है घर में। कोई भी नहीं सड़ती, मैं अपनी सहेलियों के घर जाती रहती हूँ, फिर उज़ैब भाई भी लेकर जाते हैं। तो वो मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। तुम तो हो ही पूरी बेवकूफ, जरा हाँ में हाँ मिला देती। अभी चलते हम, मौसम इतना अच्छा हो रहा है। वहां तुम किसके साथ जाती हो घूमने? किसी के साथ भी नहीं, और मुझे घूमने का शौक भी नहीं, बस आज दिल चाह रहा था। वहां तो हर जगह अम्मी और अनूशे जाती हैं। चलो फिर कहाँ चलना है? उज़ैब भाई चाबी लिए मौजूद था। हाय उज़ैब भाई, आप कितने अच्छे हैं। वहां भी नहीं जाती तो यहां भी मैं लिए चलता हूं। चलें। दुपट्टा अच्छी तरह सर पर जमाकर वो तैयार हो गई। यही तरीका सामिया का था। वो दोनों को काफी देर इधर उधर घुमाता रहा और आइसक्रीम खिलाकर घर ले आया। तुमने तो अपने भाई को हवा बना रखा था। दरअसल पढ़ते रहते थे ना, आजकल कुछ फारिग हैं, मगर फिर भी मुझे सच बहुत डर लगता है, बहुत रोब है। हाँ वो तो है। तुम्हारा फोन है? उज़ैब ने रोवेन से कहा और रिसीवर उसे पकड़ाया। तुम तो वहीं जम गई, आ जाओ अब। अनूशे का फोन था। मैं याद आ रही हूं। वो खुशी से झूम उठी। अम्मी को बहुत एतराज है तुम्हारे वहां रहने पर। तुम्हारे लिए मैंने रिश्ता पसंद कर लिया है, अब वहां किसी के चक्कर में मत आना, आहिस्ता से कहा। उज़ैब चला गया था। उज़ैब भाई इतने हसीन, इतने हंसमुख हैं, मेरी तो पक्की दोस्ती हो गई है। बस अब तुम जल्दी से आ जाओ, बहुत बड़े अफसर बन जाएंगे, तुम्हारी सारी हसरतें निकल जाएंगी। तुम बताओ कब आओगी? अनूशे ने पूछा। मैं तो पूरी छुट्टियों के बाद आऊंगी। दादी अम्मा आने नहीं देती, मेरा भी दिल नहीं चाह रहा आने को। तुमने तस्वीर पोस्ट की? मेरा दिमाग खराब है जो पोस्ट करूं। खट से फोन बंद कर दिया। अजीब लड़की है, इतना अच्छा बर गंवा रही है, किसी को भी मिल जाए तो ऐश करे। पलट कर देखा, कोई नहीं था। उसे खबर नहीं थी कि उसकी लाउडस्पीकर जैसी आवाज उज़ैब के कानों में बखूबी पहुंच रही है। किस सोच में गुम हो? सामिया ने पूछा। अनूशे ने बुलाया है। वो खुद क्यों नहीं आ जाती? बस मसरूफ है, इसने दांत पीस कर सोचा। फिर कोई मुर्गा फंसा लिया होगा, ऐन वक्त पर आजान देकर भाग जाएगा। महीनों दोनों सोग मनाएंगी। उज़ैब भाई आ जाऊं? आओ। किताबों के ढेर से सर उठाया। इम्तिहान की तारीख बढ़ गई है, फिर क्यों पढ़ रहे हैं? ये इतना बड़ा ढेर है, कैसे याद कर लेते हैं? मैं तो टहल टहल कर रट्टा लगाती हूं, इतनी मुश्किलों से याद होता है। पढ़ाई में भी ऐवे ही हूं। अनूशे का जहन आप जैसा तेज है। अल्लाह मियां बाज़ औक़ात किसी पर बहुत फयाजी कर देता है, और कोई मेरी तरह सारे मामलात में सिफर। उसने फिर अनूशे की तारीफ की। अनूशे को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। यूं करते हैं, आप और सामिया मेरे साथ चलें। यहां तो वो आ नहीं सकती, छुट्टी नहीं करती, जबकि अनूशे पढ़ाई में इंतहाई कमजोर थी। ना एमए कर रही थी, उसे तो घूमने का शौक था या शॉपिंग का। अपनी बहन की तारीफ करना मकसद था कि किसी तरह से उज़ैब से शादी हो जाए। वो अपने दूल्हा भाई की हैसियत से उसे बहुत पसंद आया था और उससे बेतकल्लुफी भी हो गई थी, इत्तफाक से। ठीक है चलते हैं, क्या खिलाओगी? वो मुस्कुराया। जो कहेंगे। अनूशे को सारे खाने A1 पकाने आते हैं। ईमान से पराठे तो ऐसे खस्ता कि जी चाहता है खाते जाओ। तुम पर तो कोई असर नहीं हुआ। उसके दुबले पतले वजूद के सिमत इशारा किया। मेरी तो छोड़ें, फिर फोन कर दूं? अम्मी से कहूंगी अच्छे अच्छे खाने पकाकर फ्रीज कर लें। अनूशे का नाम ले लेकर पेश करेंगे। अनूशे को तो किचन में जाना ही जहर लगता था। अपने खूबसूरत हाथों की फिक्र पड़ी रहती और ये बड़े आराम से सब कुछ पका लिया करती। करूं फोन? जाने को लब की। ऐसी भी जल्दी नहीं है। फिर कब?
चंद रोज रह लो फिर चलेंगे। उज़ैब भाई, पहले रोज मैं आपसे बहुत डर गई थी, उसने बताया, और अब पक्की दोस्ती हो गई। सामिया क्यों डरती है? नहीं भाई, डरती नहीं, बल्कि लिहाज करती है। भाइयों का लिहाज करना चाहिए। मेरा तो कोई भाई है ही नहीं, बस आप पक्के भाई बन जाए। ये पक्के क्या होता है? दिल चाहा कह दे बहनोई, मगर इस तरह अभी से कहना मायूब लगता। अनुषा को देखकर इनकार की मजाल ही ना रहेगी। बस होता है मेरी लुगत में। आप बाहर बहुत कम जाते हैं, लगता है कोई दोस्त नहीं। बहुत दोस्त हैं, पढ़ाई की वजह से किनारा कश हूं। उसकी हर बात का जवाब देना वो फर्ज समझ रहा था। सामी आपको बहुत चाहती है, वो बेमकसद बोली। जाहिर है मैं उसका भाई हूं, आप भी उसे इतना चाहते हैं। बहन भाई का रिश्ता बहुत अनमोल होता है। मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। अब आपसे मिलकर एहसास हो रहा है हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हैं। इसीलिए तो चाहती हूं। क्या चाहती हो? उसे तजब्जुब में देखकर पूछा। बस कुछ नहीं, मैं बोलती बहुत हूं ना, आप डिस्टर्ब होते हैं। नहीं, मैं भी चाहता हूं जरा कोई हो बातें करने वाला। आप बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है, वो सादगी से कह रही थी। अब ये रिश्वत है? कहीं जाना है घूमने? कहीं जाना होता तो मैं खुद कह देती। दरअसल फजूल बाहर आना जाना मुझे पसंद नहीं। ख्वामख्वाह तैयार होते फिरो, उसने मुंह बनाकर कहा। क्या पसंद है तुम्हें? वो मुस्कुराया। शॉपिंग करना पसंद नहीं तुम्हें? कोई खास नहीं, साल भर में 5-6 जोड़े बना लेती हूं। अनुषा लेकर आती है, उसकी पसंद बहुत आला है। आप मिल लें एक बार। ठीक है भाई, मिल लेंगे, उसने बादल नाख्वास्ता कहा तो इसने खुशी से शुक्रिया उज़ैब भाई कहा और चली गई। वो देर तक उसकी छोटी छोटी बातें याद करके मुस्कुराता रहा। अचानक ही नसीरा बेगम की तबीयत बिगड़ गई। अच्छी भली थी, सारे बच्चों को बुलवा लिया कि अब वक्त आ गया। सारी औलादें जमा हो गई। मजबूरन दुनिया दिखावे को जमीला को भी आना पड़ा, अनुषा समेत। वो काफ़ी दुखी लग रही थी। रोवैन के जाने के बाद किसी तकरीब में यूसुफ नामी नौजवान से अलैक सलैक हुई थी और वो चंद रोज़ में ही ख़त्म हो गई, क्योंकि यूसुफ के मंगेतर ने देख लिया था। वो तो उनके घर जा पहुंची थी और उनकी अच्छी तरह खबर ली थी। सूरत हसीन है, इसका ये मतलब नहीं कि दूसरों के हक पर डाका डालती फिरो। यूसुफ मेरा मंगेतर है, वो खुद लट्टू हुआ था मेरी बेटी पर, जमीला ने अनुषा को पीछे करके जवाब दिया। अच्छा, माँ बेटी को ही ये तरबियत दे रही है। लगती तो अच्छे घराने की हैं, मगर काम कितने घटिया हैं आपके। मुझे आपकी पूरी हिस्ट्री मालूम हो चुकी है। अपनी बेटी को मत बर्बाद करें, किसी शरीफ लड़के से शराफत से ब्याह दें, अच्छी सूरत सदा नहीं रहेगी। जाओ जाओ, रास्ता नापो अपना, नुमाइश में सजा रखा है बेटी को। लानत है ऐसी माँ पर, वो नफरत से कहकर चली गई। कैसी बकवास करके गई है अम्मी, वो सही कहकर गई है। अनुषा कहीं दूर से ही बोल रही थी। कितना शर्मिंदा किया है उसने। मेरी किस्म की लड़कियों से लड़के सिर्फ दिल लगी करते हैं। सही कहती है रोवैन। दिमाग खराब है तुम्हारा, क्या कह रही हो? जमीला को तवक्को नहीं थी कि अनुषा भी ऐसी बात करेगी जैसे रोवैन करती है। मेरा दिमाग अब बिल्कुल दुरुस्त हो चुका है, शुक्र है बर वक्त मुझे होश आ गया। इस तरह की जिंदगी गुजारने में हमेशा नुकसान होता है। अल्लाह का एहसान है मेरी इज्जत पर कोई धब्बा नहीं आया, वरना दुनिया के बासी दरिंदा बनने में कोई देर नहीं लगाते। उसने झुरझुरी सी ली। थोड़ी देर बाद नसीरा बेगम की बीमारी की इत्तला आ गई। अम्मी फौरन चलिए। अनुषा, मैंने तुम्हारी बहुत बड़े सरमाएदार से शादी करनी है, ये मेरा ख्वाब है, मगर मैंने अब ऐसा कोई ख्वाब नहीं देखना, उसने साफ साफ जवाब दे दिया। रोवैन कितनी सादा है और वो बहुत मासूम लगती है। मेरा चेहरा खूबसूरत है, मगर मासूमियत नाम को नहीं। वो अपना चेहरा शीशे में देख रही थी। हम सवेरे रवाना हो जाएंगे, दादी जान को देखने जाना है। वो इतनी मोहब्बत करने वाली हैं,
हमें माली तौर पर उन्होंने ही इतना मुस्तहकम किया है कि आज हम इतनी अयाशी से रह रहे हैं। आपने मुझे उनके करीब ना जाने दिया। अच्छा किया, रोवैन ने आपकी बात ना मानी। वो अपना और जमीला का सामान पैक करने लगी। आप अपना वहां रवैया ठीक रखें, वो ताकीद कर रही थी। सारे बच्चे जमा हुए तो नसीरा बेगम भली चंगी हो गई। हाय, कैसे डरा दिया था आपने। जमीला चापलूसी में नंबर लेने लगी। शुक्र है मेरी बीमारी की वजह से तुम आई तो। अनुषा खुश थी। यहाँ कितना सच्चा प्यार मिल रहा था और अम्मी कितनी दूर थी। अब हम ददयाल से दूर नहीं रहेंगे, उसने फैसला किया। उज़ैब भाई, देखा कितनी प्यारी है मेरी बहन, बस आप मेरे दूल्हा भाई बन जाएं। वो दिल की बात जबान पर ले आई। चलो भागो, मुझे पढ़ना है, उज़ैब ने ढांट कर भगा दिया। रोवैन को उसके बदलते रवैये पर दुख सा हुआ। सारे कजन्स जमा थे, बड़ा खुशगवार माहौल था। माँ, आप हमें वैसे ही बुलवा लेती, आ जाते। सब कह रहे थे, जाने क्या हो गया था मुझे। ये तो खुशी हुई कि मेरी तबीयत का सुनकर तुम लोग भागे चले आए। इसका मतलब है मैं सबको अजीज हूं। आप तो हमारी माँ हैं, हमें अजीज नहीं होंगी, फुरकान ने कहा। अब माशाल्लाह सारे बच्चे जमा हैं, कुछ इनके मुस्तकबिल की फिक्र है कि नहीं। आप जो बैठी हैं। फिर उन्होंने सबके बारे में फैसला सुनाया तो किसी को भी एतराज ना हुआ। अब 2-4 दिन के लिए आए हो तो कर लो सब, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। क्या पता दूसरी बार इत्तला भी भिजवा सकेंगे कि उससे पहले ही मैं बगैर मिले चली जाऊंगी। आप ऐसी बातें मत किया करें अम्मा, जमीला ने झट उनका बाजू पकड़कर दबाया। हमारे सर पर आपका साया सलामत रहे, बच्चों की खुशियां देखें। जमीला ने आई मुस्कुराहट को दबाया। उनकी तो झोली भर गई थी, वो ऐसे ही खाइफ थी। मिलजुल कर रहने में ही सच्ची खुशी है। अपने सारे काम खुद ही निपटा लेते हैं, अकेला दूर रहने वाला कुछ भी नहीं कर सकता। हाय, उसके तो पैरों तले से जमीन निकल गई। आंसू थे कि थम नहीं रहे थे। सबसे बचती बचाती वो उसके सर पर जा पहुंची और वो उसे देखकर दिलकशी से मुस्कुराया। आपको शर्म नहीं आती? मैं इतनी इज्जत करती थी आपकी। वो रो रो कर पागल हो रही थी। अनुषा इतनी प्यारी है, क्या हो सकता है अब? बड़ों ने जो फैसला किया उसमें मैंने अपनी पसंद बता दी। वो बराबर मुस्कुरा रहा था उसे रोता देखकर। मैंने हमेशा आपको दूल्हा भाई की हैसियत से देखा, सिर्फ दूल्हे के रूप में भी बुरा नहीं लगूंगा, वो शरारत से बोला तो वो सटपटा कर रह गई। मैं आपको किसी सूरत पसंद नहीं करती, वो बोली। डियर, तुमने इतने प्यारे अंदाज से वकालत की है तो मैं कैसे अपनी वकील से दस्तबरदार हो जाऊं? उज़ैब भाई, अल्लाह, आपको हो क्या गया है? बिल्कुल बदल गए हैं। मैं तो आपके काबिल भी नहीं हूं, आपको शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। उसने दूसरा हरबा इस्तेमाल किया। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होगी, तुम्हें सबके सामने अपनाऊंगा और धड़ल्ले से लेकर जाऊंगा। लाओ हाथ। बेवकूफ, जाहिल हो। लड़कियां तो जल्द शादी होने के ख्वाब देखती हैं, फिर दूल्हा भी खूबसूरत हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है। सहेलियां रश करती हैं, उसने हंसते हुए कहा। मैं कोई ख्वाब नहीं देखती ऐसे वैसे, उसने सिसकी ली। मैं तो बड़ी देर से सोच रहा था तुम जरूर आओगी, इसीलिए इसका इंतजाम कर रखा था। उसने टेबल की दराज से कुछ निकाला। अब तुम ख्वाब जरूर देखना। उज़ैब ने उस जबरदस्ती पकड़कर उसे छोटी सी अंगूठी पहना दी, लिहाजा वो फंस गई। अब उतार लो तुम, वो शरारत से बोला। अल्लाह प्लीज, वो अंगूठी उतारने की जिद्दोजहद करने लगी। मैं जानबूझकर छोटी लाया था ताकि उतर ना सके। उज़ैब भाई आप, वो जिद हो गई। तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफें सुन सुनकर मगरूर हो गया था, लिहाजा मैं क्यों नादानी करता। सारी जिंदगी चाहूंगा कि बस वही मेरी शरीके हयात बने जिसने दूसरों के आगे मेरी तारीफों के पुल बांधे। वो मुस्कुराया।
झूठ बोलती थी मैं। वो अंगूठी उतारने के लिए जोर लगाने लगी। ये सारी तैयारियां हमारी निस्बत तय होने की हैं। देख रही हो ना गहमा गहमी, और भी तो इतने सारे हैं, उनकी भी तो बात तय हुई है। वो चिढ़कर बोली। दादी जान के आगे मैंने सबसे पहले अपना मसला उठाया था। मैं गोल्डन चांस हाथ से कैसे गंवा देता। आप तो सर झुकाए पढ़ते रहते थे। मुझे क्या मालूम था इतने धोखेबाज हैं आप उज़ैब भाई। अब भाई कहा तो मैं लिहाज नहीं करूंगा। शराफत की बात समझती नहीं हो। बड़ों ने तय किया है हमारा रिश्ता, पसंद मैंने भी बता दी थी। वो गुर्राया। और आओ मेरे सामने बार बार। इतनी जल्दी फ्री हो गई थी, कपड़े भी इस्त्री करके दिए। मुझे क्या मालूम था कि आप फ्रॉड हैं। उसने मतूरा आंखें रगड़ी। निचला होंठ अभी तक सदमे और हैरानी के बायस लटका हुआ था। वो कहकहा लगा कर हंसा। अब तो मालूम हो गया। रोवैन, मजाक के अलावा तुम एक बहुत अच्छी साफ गो और खड़ी लड़की हो। आज के दौर में ऐसी लड़कियों का काल है। कौन काफिर इस नेमत को ठुकराएगा। वो जो फोन हुए उनके बारे में भी जानता हूं। कैसी पटर पटर मेरी तारीफें हो रही थी। उसने रोवैन की आंखों में झांक कर कहा। रोवैन ने लटके हुए होंठ को दांतों में दाब लिया और खजालत से उंगलियां मस ली। तुमने CSS का इम्तहान देना है, मैं मदद करूंगा। वो शरारत से आंखें नचा रहा था। कितने बुरे लग रहे हैं, बेशरम ना हो तो। मैं कितना सोबर समझती थी। ये तो इसीलिए फ्री हुए थे। इनके दिल में मेरा ख्याल जाग उठा था। अब किन सोचों में गुम हो गई। उज़ैब ने उसका सर हिलाकर कहा। उज़ैब हाँ, उसने टोक दिया। इतनी भी जाहिल नहीं कि बात ना समझ सको। ये अनुषा के हक पर तुमने डाका नहीं डाला। तुमने तो तारीफों के पुल बांध दिए, मगर मैं एक कान से सुनकर दूसरे से उड़ाता रहा। मैं तो सादगी का मौका देकर उसके हिसार में फंसता चला गया। मुझे तो सादगी ने काबू कर लिया और मैं 100 जान से फिदा हो गया। वो वालिहाना अंदाज में कहे जा रहा था और पता नहीं कहां से ढेरों शर्म ने गलबा पा लिया। इसे उतार दें प्लीज, वो झेंपी झेंपी बोली। पहने रहो। वो शाद सा हुआ। कल, वो शर्म से दोहरी हो गई। कल क्या? वो समझ गया था फिर भी बन गया। आपको मालूम तो है, उससे बोला ना गया। कितने बेनियाज बने हुए हैं, तंग कर रहे हैं। मेरे बारे में जाना क्या क्या सोचते रहे और मैं पहुंच जाती थी पटाने। धोखेबाज ना हो तो मैं भी नहीं बताऊंगी। बस ये अंगूठी कैसे उतारूं? कितनी बुरी बात है, सबको मालूम हो जाएगा कि मैंने अंगूठी खुद ही पहन ली। बेशरम और जाने क्या क्या कहलाऊंगी। अम्मी क्या कहेंगी? ऐसी बातों को बुरा कहने वाले खुद ही ऐसी राह पर चल निकली। सबका मुंह कैसे बंद करूंगी? मैंने अपने लिए नहीं पसंद किया था, ये तो मुझे अनुषा के लिए अच्छे लगते थे। वो तो अच्छे हैं, क्या मालूम था मुझ पर डोरें डाल रहे हैं। अब ऐसे शरीर हो रहे हैं। जाने क्या नजर आ गया मुझ में, कौन सी सादगी नजर आ गई, जबकि सादा कब हूं मैं। बक बक किए जाती हूं, सूखी सड़ी बेरौनक मुंह वाली। ऐसी भी क्या शरारत, छोटी अंगूठी पहना दी, चाहे मेरी उंगली टूट कर गिर जाए। उन्हें क्या, उनका तो मकसद पूरा हो गया। हाय, ये मुझे कैसे देख रहे हैं, कहाँ छुपाऊं अपना हाथ। वो सोच सोच कर शर्म से लाल होती जा रही थी। इसे उतारे ना उज़ैब गर्दन दबा दूंगा। उसने दोनों हाथ गर्दन पर रखकर दबाई और उसका चेहरा ऊंचा किया। बोलजी और फिर रोहासी हो गई। सब कितनी बातें बनाएंगे, आप थोड़े किसी को सच कहेंगे। इतने झूठे हैं, सबको यकीन आ जाएगा कि मैंने खुद पहन ली। शौक में ये भी ना देखा कि ये छोटी है। रोवैन रो देने को थी। तो मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग शरीफ में कुछ अकल शरीफ आई? उज़ैब ने उसका सर बजाया। अनुषा की फिक्र है, उसकी भी हो जाएगी जुनैद भाई से। दादी अम्मा ने काबू कर लिया है चच्ची जान को। अम्मी दादी जान के कब्जे में आ गई। मारे खुशी के वो खिल उठी। जुनैद भाई उसे बहुत पसंद आए थे। उन्हें देखकर एहसास हुआ था
امی نے انکار کر کے کتنی بڑی غلطی کی ہے، مگر پھر عزیب کو دیکھ کر اسے احساس ہوا انوشے کے لیے تو یہ شخص سوٹ کرتا ہے، کیا معلوم تھا وہ اس پر فدا ہو جائے گا۔ خدا کا لاکھ شکر ہے امی نے سیدھی راہ اپنائی، ورنہ وہ تو انوشے کو تباہ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ انوشے خود کو حسینہ عالم سمجھتی ہے، کام کی نہ کاج کی، سارا دن اپنے آپ کو سنوارنے میں گزار دیتی تھی۔ بہت اچھا ہوا اب تایا ابا کی چلم بھرا کرے گی تو مزہ آئے گا۔ عورت کی زندگی کی اصل معراج یہی ہے، اپنا آپ نچھاور کر دے، اس کا ایثار اسے بلند مقام عطا کرتا ہے۔ خدا کرے میری بہن جنید بھائی کے ساتھ ہمیشہ خوش رہے۔ اسے بے چینی تھی انوشے کو دیکھنے کی کہ اس کا رد عمل کیا ہے۔ ظاہر ہے اچھا بھلا ہوگا، جنید بھائی اچھے خاصے کماؤ پوت ہیں اور گاڑی بھی لے لی ہے، لگتا ہے امی ان کی گاڑی پر پھیل پڑی۔ امی بغیر کسی لالچ کے قابو میں آنے والی نہیں۔ توبہ توبہ، اپنی ماں کے خلاف کافی غلط جذبات رکھتی ہو، ان کی ساری خوبیاں خامیاں میرے سامنے ہی تو ہیں، یہ بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ ابھی تو روک تھا کہ امتحانات کی تیاری کر رہے ہیں، سارے گھر والے متاثر ہو رہے تھے، پڑھائی چھوڑ چھاڑ کر شادی کا شوق چرایا۔ وہ سوچوں میں دور نکل گئی تھی۔ کدھر گم ہو؟ عزیب نے انگلی اس کے سر میں ٹھک ٹھک کی۔ بس آپ اسے اتار دیں، مجھے انوشے کے پاس جانا ہے، خدا کے واسطے۔ وہ گڑ گڑائی، اسے نہیں اتاروں گا، اور ایک اور بات سنو گی، میں تو کل نکاح بھی پڑھوا رہا ہوں تم سے۔ ہائے، وہ ڈھہ گئی۔ تمہارے جینیس بھائی سے ذرا متاثر نہیں ہوں، گھننے فراڈیے، مجھے پھنسا دیا۔ وہ منہ بھر کر سامیہ کو گالیاں دے رہی تھی، جس نے ہاتھوں پیروں میں مہندی تھوپ دی تھی۔ پڑھائی کا روب دیتے رہے، اب CSS یاد نہیں رہا، طالب علم شادی کر کے فیل ہوتا رہے گا اور میں بدنام ہو جاؤں گی پڑھنے نہیں دیتی۔ اور ادائیں دکھاؤ ہمارے طالب علم کو، جاؤ بار بار اپنے اچھے بھائی پھنس گئے تمہارے دام میں، فراڈی تو تم ہو، خبیث گھنی۔ سامیہ نے بدلہ لیا، چلو اب کچھ کھلا دو تو مجھے، بھوک کے مارے دم نکلا جا رہا ہے، تم نے تو معذور بنا کر رکھ دیا مجھے۔ بھیج رہی ہوں اپنے بھائی کو، وہی پلاؤ کی دیگیں اتروا رہے ہیں، جان سے مار دوں گی اگر تم نے کوئی فضول حرکت کی، مہندی والا ہاتھ جما دوں گی۔ کیسا لیپ مارا ہے تم نے، تم تو میرے قبضے میں ہو۔ سامیہ جاتے جاتے بولی، سارے میرے دشمن بنے ہوتے ہیں، انوشے بھی جانے کہاں چھپی ہے۔ وہ بڑبڑائی اور یکدم جمیلہ بیگم کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ عجیب نرالی ہے میری ماں، مطلب نکل رہا ہے نا، اب ساس کے پاؤں دبائے جا رہے ہیں۔ پردہ ہوا سے اڑا تو سامنے والے کمرے کا منظر صاف دکھائی دیا، جمیلہ ساس کے پاؤں دبا رہی تھی۔ شکر ہے امی کو ہوش آ گیا، دل میں سکون ہی سکون اتر آیا۔ مائیں ایسے ہی اچھی لگتی ہیں، سر ڈھانپے ہوئے، معصوم شریف سی۔ بڑے عرصے بعد ماں بہت پیاری لگی، دل چاہا کہ ان سے لپٹ جائے اور انہیں چوم لے۔ یکدم ہی ذہن اور سمت چلا گیا، سامیہ کی بچی اپنے چہیتے بھائی کو نہ لے آئے۔ دروازہ بند کرنے کی نیت سے اٹھی، پاؤں زمین پر رکھا تو احتیاط سے تھا، مگر جانے کیا ہوا کہ دور تک پھسلتی چلی گئی۔ تیرا ستیہ ناس، مجھے خبر تھی تو ضرور گڑبڑ کرے گی، سامیہ چلائی۔ عزیب بھی پیچھے تھا، روین کی درگت پر محظوظ ہوا۔ وہ روین کی نظر سے اوجھل تھا۔ اتنی زور سے موچ آئی ہے، وہ کرا رہی تھی۔ کس نے کہا تھا اٹھنے کو؟ بڑی خوبصورت لگو گی موچ دار دلہن بن کر، ساری مہندی کا بیڑا غرق کر دیا۔ تمہارے نوکر نہیں ہیں، کھانا لاؤ پھر بھی کھلاؤ بھی، میری جان سے پیاری نند نہیں ہو۔ وہ درد کو چھپا کر مسکرائی، اور تمہارے بھائی سے تو میں ہی نپٹوں گی، کیا حال کر دیا میرا۔ روین جی، پہلی بار مطمئن کیا تم نے، کہو تو میں کھلا دوں۔ عزیب کی آواز نے اوسان خطا کر دیے۔ سامیہ بچاؤ، وہ سامیہ سے لپٹ گئی۔ عزیب نے چاہت کے مارے رنگ آنکھوں میں بسائے، روین کو دیکھا، سامنے اسے پیچھے کر رہی تھی، دونوں ہی مہندی میں رنگے جا رہی تھی۔
अगर मेहंदी का रंग ना चढ़ा तो तुम्हारे 2 कानों में सर कर दूंगा। वो सुन कब रही थी? मुझे क्या, दोनों भुगतें, इतनी ख्वारी उठा रहा हूं। उजलत की शादी भी मेरी और मेरी तौबा जो ऐसी आइंदा गलती करूं। वो बड़बड़ाते हुए चला गया। इतना बेशरम दूल्हा देखा है कभी? हाँ देखा है, तेरा। सामिया ने शरारत से दीदे मटकाए। वो उसे मारने की नीयत से उठने लगी, मगर चकरा कर रह गई। अपने भी और मेरे भी कपड़े खराब कर दिए। अब मुंह खोलो। सामिया नवाले बना बना कर उसके मुंह में ठूंसने लगी। आराम से खिलाओ, उसने भरे भरे मुंह से कहा। जी नहीं, जालिम न धो। उसने फिर बड़ा सा नवाला उसके मुंह में ठूंसा। मुंह तेजी से चलाते हुए उसने कहा, फिर जालिम भाई का हाथ भी देखो। रुवैन ने मेहंदी वाला हाथ उठाया और दोनों खिलखिलाकर हंस दी। अल्लाह मियां, हम दोनों में दोस्ती ही रखना। जी नहीं, मैं तो आते ही तुम्हें घर से निकालूंगी, किसी बहुत ही प्यारे प्यारे दूल्हा के साथ, देखना। अच्छा, वो झेम गई। खाला शफ़ो लाई है ना मेरा रिश्ता भी? है? वो आया है? हाँ आया है। कैसा है? उसने इश्तियाक से पूछा। बोंगा। इसका मतलब है अच्छा होगा। क्या बेचता है? हाउस जॉब कर रहा है। डॉक्टर की बेगम बनोगी? मुबारक हो, मुझे जरूर दिखाना। और बच्चू, कोहनियों तक मेहंदी ना लगाई तो मैं 2 हाथ ना आऊंगी। हम दोनों लगाएंगे, मैं और तुम्हारे भाई। ढेरों शर्म की लाली के दरमियान रुवैन ने कहा तो सामिया ने बढ़कर उसकी पेशानी चूम ली। मेरा भाई फजूल में नहीं फिदा हुआ, तुम में कुछ खूबियां हैं, हजारों में एक हो। रुवैन उसकी बात सुनकर मुतमईन से अंदाज में मुस्कुरा दी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।